Today we want to consider something about deception. इस अध्ययन में हम धोखे के बारे में कुछ विचार करना चाहते हैं। In our last study we thought about lying, and this is closely related to that. हमारे पिछले अध्ययन में हमने झूठ बोलने के बारे में विचार किया था और धोखे का उससे बहुत करीबी संबंध है। We can be saved from a lot of problems in our life if we can identify Satan's deceptions. अगर हम शैतान के धोखे को पहचान सके तो हम अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। Let's turn today to 2 Thessalonians and chapter 2. Here we read about a world ruler who is going to come up to dominate the world in the last days. आइए दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरे की ओर मुड़े। यहाँ हम एक ऐसे विश्व शासक के बारे में पढ़ते हैं जो अंतिम दिनों में दुनिया पर हावी होने वाला है। And he is going to be an instrument in Satan's hand. और वह शैतान के हाथों में एक उपकरण बनने वाला है। And he's going to be supported with supernatural powers from Satan. And we read here that many people are going to be deceived. और उसे शैतान के अलौकिक शक्तियों का समर्थन मिलने वाला है। हम यहाँ पढ़ते हैं कि बहुत से लोग धोखा खाने वाले हैं। Turn to 2 Thessalonians 2 and verse 9 onwards. The one who's coming is in accord with the activity of Satan, with all power and signs and false wonders, with all the deception of wickedness for those who perish because they did not receive the love of the truth, so as to be saved. आइए दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय की ओर मुड़े। 9वें वचन से आगे जो आने वाला है वो शैतान के कामों के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य और चिन्ह और झूठे अद्भुत काम और दुष्टता के सब प्रकार के धोखे के साथ उन लोगों के लिए है जो नाश होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे वे उद्धार पाते। For this reason God will send on them a deluding influence so that they might believe what is false, in order that they may be judged who did not believe the truth, but took pleasure in wickedness. इस कारण परमेश्वर उन पर एक धोखा देने वाली शक्ति भेजेगा कि वे झूठ पर विश्वास करें और उनका न्याय किया जाए, जिन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया वरन दुष्टता से प्रसन्न हुए। So there we see how Satan is going to deceive people in the last days. तो वहां हम देखते हैं कि शैतान अंतिम दिनों में लोगों को कैसे धोखा देने वाला है। And in another verse in 1 Timothy 4 it says that the Spirit speaks explicitly that in the latter times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons. फिर से हम एक अन्य वचन में पढ़ते हैं कि आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि अंत के समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका पहला वचन। Why does God allow spirits that deceive to come into the midst of His people to the point where it says here, some will fall away from the faith? परमेश्वर धोखा देने वाली आत्माओं को अपने लोगों के बीच में आने की अनुमति क्यों देता है? यहाँ तक कि यहाँ कहा गया है कि कुछ लोग विश्वास से दूर हो जाएंगे। We need to understand the reason for that. हमें इसका कारण समझने की आवश्यकता है। Heaven is a place of truthfulness. स्वर्ग सत्य का स्थान है। Jesus is the truth. The Spirit is the Spirit of truth. God is a God of truth. प्रभु यीशु सत्य है, उसकी आत्मा सत्य की आत्मा है, परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। And God has to separate among those who claim to be His children between those who speak the truth and those who tell lies. परमेश्वर उन लोगों को जो उसके बच्चे होने का दावा करते हैं उनके बीच से अलग करना है, जो सच बोलते हैं और जो झूठ बोलते हैं। And He uses many circumstances, many situations, and deceiving spirits as well to separate these two groups. वह इन दो समूहों को अलग करने के लिए कई परिस्थितियों, कई स्थितियों और धोखा देने वाली आत्माओं का उपयोग करते हैं। There are so-called believers who would tell lies when they can make some profit out of it, get some benefit from it for themselves. कुछ तथाकथित विश्वासी हैं जो झूठ बोलेंगे जब वे इससे कुछ लाभ कमा सकते हैं और इससे खुद के लिए कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। And there are other believers who will not tell a lie under any circumstances, whatever the price they have to pay. कुछ अन्य विश्वासी है जो किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। These two categories of people cannot be put together. इन दो श्रेणियों के लोगों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। They sit together in a church building today,
but they will not sit together in heaven. वे आज एक कलीसिया की इमारत में एक साथ बैठते हैं, लेकिन वे स्वर्ग में एक साथ नहीं बैठेंगे। God is going to separate between those who love the truth and those who do not love the truth. परमेश्वर उन लोगों के बीच अंतर करने जा रहा है जो सत्य से प्रेम करते हैं और जो सत्य से प्रेम नहीं करते हैं। Now one would think that everyone who claims to be a Christian loves the truth, but it is not so. अब कोई सोच सकता है कि हर कोई जो मसीह होने का दावा करता है सत्य से प्रेम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। And only a person who is truthful, loves the truth, and seeks to be upright in this area of truthfulness in every area of his life will be protected from the deception of Satan the liar. और केवल वही व्यक्ति जो सत्यवादी है, जो सत्य से प्रेम करता है और सत्य के इस क्षेत्र में ईमानदार होना चाहता है, अपने जीवन के हर क्षेत्र में शैतान और उसके झूठ के धोखे से सुरक्षित रहेगा। One of the first areas in which Satan seeks to deceive people is by preventing them from having any assurance of their salvation. शैतान लोगों को धोखा देने का पहला क्षेत्र है कि उन्हें उनके उद्धार का कोई आश्वासन न हो। I know in my own life how it took me a number of years to be sure that I was saved. मैं अपने जीवन में जानता हूं कि मुझे यह सुनिश्चित करने में कितने साल लग गए कि मेरा उद्धार हुआ है। I had accepted the Lord Jesus as my Savior, asked Him to come into my heart perhaps 100 times between the ages of 13 and 19. मैंने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था और 13 से 19 वर्ष की आयु के बीच शायद 100 बार उनसे अपने हृदय में आने के लिए कहा था। I don't know when He actually came. I don't even know the date. मुझे नहीं पता कि वे वास्तव में कब आए, मुझे तारीख भी नहीं पता। I was always unsure. Am I saved or am I not saved? मैं हमेशा अनिश्चित था कि क्या मेरा उद्धार हुआ है या नहीं। And then one day I read a verse in John 6:37 where Jesus says, "Him that comes to me I will never cast out." और फिर एक दिन मैंने यूहन्ना 6:37 में एक वचन पढ़ा जहां प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। And I could say, "Well, Lord, I've certainly come to you at least 100 times, if not more." और मैं कह सकता था, ठीक है प्रभु, मैं निश्चित रूप से आपके पास आया हूँ कम से कम 100 बार, यदि उससे अधिक नहीं। Today I'm going to believe you that you did not cast me out. आज मैं आप पर विश्वास करने जा रहा हूँ कि आपने मुझे बाहर नहीं निकाला। Now that was probably true long before that day. अब ये शायद उस दिन से बहुत पहले सच था, But I believed it only that day. And then I got assurance of salvation. लेकिन मैंने उस दिन ही इस पर विश्वास किया और फिर मुझे उद्धार का आश्वासन मिला। And once I got that assurance of salvation, it never left me. और एक बार जब मुझे उद्धार का वह आश्वासन मिल गया तो उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। It hasn't left me for 39 years now. इसने मुझे अब 39 वर्षों से नहीं छोड़ा है। God's word is the truth. परमेश्वर का वचन सत्य है। And if I believe God's word, it will deliver me from all the lies of Satan. और यदि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ तो यह मुझे शैतान के सभी झूठ से मुक्त कर देगा। Satan tried to tell me for so long that I was not a child of God. शैतान ने मुझे इतने लंबे समय तक यह बताने की कोशिश की कि मैं परमेश्वर की संतान नहीं हूँ। But God's word, with the witness of the Spirit within my heart, assured me that I was. लेकिन परमेश्वर के वचन ने मेरे हृदय में आत्मा की गवाही के साथ मुझे आश्वस्त किया कि मैं हूँ। Another thing Satan tries to do is tell you a lie that God hasn't forgiven all your past sins. He's forgiven most of them perhaps, but some of those really serious sins you committed, they're not forgiven. शैतान जो दूसरी चीज करने की कोशिश करता है वह है आपको झूठ बताना कि परमेश्वर ने आपको सभी पिछले पापों को क्षमा नहीं किया है। उसने शायद उनमें से अधिकांश को क्षमा कर दिया है, लेकिन आपके द्वारा किए गए कुछ गंभीर पाप क्षमा नहीं किए गए हैं। There are believers who live under condemnation because they believe the deception, the lie of the devil. बहुत से विश्वासी निंदा के अधीन रहते हैं क्योंकि वे इस धोखे शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं। Don't believe him. He's a liar. उस पर विश्वास न करे, वह झूठा है। The Bible says in 1 John 1:7, if we walk in the light, and that means we are honest before God, the blood of Jesus cleanses us from all sin. बाइबल पहला यूहन्ना 1:7 में कहती है, यदि हम ज्योति में चलते हैं और इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के सामने ईमानदार हैं, तो प्रभु यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। Every sin is cleansed away
by the blood when we come into the light and acknowledge our failure and our sin. जब हम ज्योति में आते हैं और अपनी विफलता और अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो लहू से हर पाप शुद्ध हो जाता है. So, another thing you find that Satan seeks to do is to tell people, well, even if God forgave you, every time he looks at you, he still remembers all those terrible things you did against him. तो तीसरा तरीका जिससे आप पाते हैं कि शैतान धोखा देने की कोशिश कर रहा है वह है लोगों को यह बताना कि भले ही परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया हो, हर बार जब वो आपको देखता है तो उसे अभी भी वे सभी भयानक चीजें याद आती हैं जो आपने उसके विरुद्ध की थी. That's another lie. You shouldn't believe Satan. He's a liar. यह एक और झूठ है. आपको शैतान पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वह झूठा है. Hebrews 8:12, the Lord says, I will be merciful to their iniquities. I will not remember their sins anymore. इब्रानियों 8:12 में प्रभु कहते हैं, मैं उनके अधर्म के प्रति दयालु रहूंगा, मैं उनके पापों को फिर कभी याद नहीं रखूंगा. I had this problem for at least a couple of years after I had assurance of my salvation. मेरे उद्धार का आश्वासन मिलने के बाद कम से कम 2 साल तक मुझे यह समस्या रही. I thought, yeah, well, I know God's forgiven me, but I'm not too sure whether He still remembers all those things I did and holds that against me. मैंने सोचा, हाँ ठीक है, मुझे पता है कि परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है कि क्या वह अब भी मेरे द्वारा किए गए सभी कामों को याद रखता है और मेरे खिलाफ उसे पकड़े रहता है. Till one day I believed this verse in Hebrews 8:12. I will not remember their sins anymore. जब तक कि एक दिन मैंने इब्रानियों 8:12 में इस वचन पर विश्वास किया, मैं उनके पापों को फिर कभी याद नहीं रखूंगा. And I said, Lord, I believe that not a single sin I ever done in my life you will remember. और मैंने कहा, प्रभु मैं इस पर विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में मैंने जो भी पाप किया है वो आप याद नहीं रखेंगे. He doesn't hold a single thing that you've done against you. वो आपके द्वारा किए गए किसी भी पाप को आपके खिलाफ याद नहीं रखता. When he looks at you, it's as though you had never sinned. If you have been honest. जब वो आपको देखता है तो ऐसा लगता है जैसे आपने कभी पाप ही नहीं किया, यानी अगर आप पहले से ही परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं. We read that when Satan tempted Jesus, quite amazing to see this. In Matthew 3:17, the voice from heaven came at Jesus' baptism saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. हमने शैतान द्वारा प्रभु यीशु को लुभाने के बारे में पढ़ा है. जब ऐसा हुआ तो यह देखना काफी आश्चर्यजनक है. हम मत्ती 3:17 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय स्वर्ग से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ. And immediately Jesus went after that into the wilderness. The devil tempted him, and the first thing the devil says is, If you are the Son of God, questioning that voice that came from heaven. उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु जंगल में चले गए और शैतान ने उनकी परीक्षा ली. शैतान ने सबसे पहले कहा, क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो? स्वर्ग से आई परमेश्वर की आवाज पर सवाल उठाते हुए. The voice said very clearly, This is my beloved Son. आवाज ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है. And the devil says, Are you really? If you are the Son of God. और शैतान ने कहा, क्या तुम सच में हो, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो? This type of temptation comes to us also as children of God. इस प्रकार का प्रलोभन परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारे पास भी आता है. The Holy Spirit's come and given us an assurance. We are God's children and we call God Father, and the devil comes to us and says, Are you really? पवित्र आत्मा हमें यह आश्वासन देते हुए आया है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हम परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, लेकिन शैतान हमारे पास आता है और कहता है, क्या तुम सच में हो? Whom are you going to believe now? अब आप किस पर विश्वास करेंगे? Those feelings that the devil gives you, or God's unchangeable word? उन भावना पर जो शैतान आपको देता है या परमेश्वर के अपरिवर्तनीय वचन पर? Feelings will come and feelings will go, and every feeling is deceiving. But God's word is unchanging. भावनाएं आएंगी और भावनाएं जाएंगी और हर भावना धोखा देने वाली होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनीय है. That's where we put our faith. यहीं पर हम अपना विश्वास रखते हैं. The devil seeks to make us feel condemned by so many lies like this. शैतान हमें इस तरह के बहुत से झूठ के जरिए दोषी महसूस कराना चाहता है. He tells us that we are accepted by God on the basis of our works. This is another lie. वो हमें बताता है कि हम अपने कामों के आधार पर परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाते हैं. यह एक और झूठ है. We're not accepted by God on the basis of our works.
हम अपने कामों के आधार पर परमेश्वर द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। We're accepted by God on the basis of our repentance and faith in Christ. हम अपने मन फिराव और मसीह में विश्वास के आधार पर परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। We are accepted by God in Christ. हम मसीह में परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। What do I mean by this? इससे मेरा क्या मतलब है? Supposing one morning you didn't get time to read the Bible and you rush off to work. मान लीजिए कि एक सुबह आपको बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिला और आप काम पर भाग गए। Are you going to have an accident that day? क्या उस दिन आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला है? The devil will tell you that you might. शैतान आपको बताएगा कि हो सकता है। That is superstition. यह अंधविश्वास है। It's a lie. यह एक झूठ है। I'm not accepted by God because I read the Bible in the morning. मैं परमेश्वर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि मैं सुबह बाइबल पढ़ता हूँ। The only thing that can break my fellowship with God is conscious sin, where I have deliberately disobeyed God in some area where He made His will clear to me. एकमात्र चीज जो परमेश्वर के साथ मेरी संगति को तोड़ सकती है वह है जानबूझकर किया गया पाप, जहां मैंने जानबूझकर किसी ऐसे क्षेत्र में परमेश्वर की अवज्ञा की है जहां उसने मुझे अपनी इच्छा स्पष्ट की थी। And if I have deliberately sinned, then my fellowship with God is broken, but not otherwise. अगर मैंने जानबूझकर पाप किया है तो परमेश्वर के साथ मेरी संगति टूट गई है, लेकिन अन्यथा नहीं। Maybe I didn't get time to read the Bible, or maybe I didn't pray and I went off to work. हो सकता है कि मुझे बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिला या शायद मैंने प्रार्थना नहीं की और मैं काम पर चला गया। If my conscience is clear that as far as I know I'm not consciously sinning, my fellowship with God is clear. अगर मेरा विवेक साफ है, यानी जहां तक मुझे पता है कि मैं जानबूझकर पाप नहीं कर रहा हूं, तो परमेश्वर के साथ मेरी संगति शुद्ध है। I can read the scriptures later on in the day. I'm not going to have an accident. मैं दिन में बाद में पवित्र शास्त्र पढ़ सकता हूँ, मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। We must not believe all these lies that the devil says. हमें शैतान द्वारा कही गई इन सभी झूठों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। Think of the lies that the devil tells us in relation to the future. भविष्य के संबंध में शैतान द्वारा हमें बताए गए झूठ के बारे में सोचें। What is anxiety? Anxiety is the result of all the lies the devil tells us are going to happen to us in the future. चिंता क्या है? चिंता शैतान द्वारा हमें बताए गए उन सभी झूठों का परिणाम है जो भविष्य में हमारे साथ घटित होने वाले हैं। I think it's true to say that 99% of the things that we worry about never take place. मुझे लगता है कि यह कहना सही है कि जिन चीजों के बारे में हम चिंता करते हैं उनमें से 99% कभी नहीं होती है। Think of the things you worried about in past years. उन चीजों के बारे में सोचे जिनके बारे में आपने पिछले सालों में चिंता की थी। They haven't taken place in your life. वे आपके जीवन में नहीं हुई है, But you worried about them, got anxious and wasted a lot of time and perhaps a lot of sleep. लेकिन आप उनके बारे में चिंतित हुए और बहुत समय बर्बाद किया, शायद बहुत नींद भी। But none of those evil things which you thought might happen have happened. Maybe 1%. लेकिन उन बुरी चीजों में से कोई भी नहीं हुई जिनके बारे में आपने सोचा था कि हो सकती है, शायद 1% को छोड़कर। Have you realized how much time and energy, emotional energy you wasted in past years worrying about things that were never going to take place? क्या आपने महसूस किया है कि आपने पिछले सालों में उन चीजों के बारे में चिंता करते हुए कितना समय और ऊर्जा, भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद की जो कभी नहीं होने वाली थी? Who did that? Who caused all that anxiety and worry in your mind? That was Satan. वह किसने किया? आपके मन में इतनी चिंता और बेचैनी किसने पैदा की? वह शैतान था। He was the one who kept on telling you about this thing and that thing and the other thing that might happen to you or to your children or your wife. वो वही था जो आपको यह बात और दूसरी बात बता रहा था जो आपके साथ, आपके बच्चों या आपकी पत्नी के साथ हो सकती है। Let's make a decision today that we are not going to let the devil fool us anymore. आइए आज हम यह निर्णय ले कि हम शैतान को अब हमें और मूर्ख नहीं बनाने देंगे। We're going to love the truth and we're going to expose the deception and lies of sin. हम सत्य से प्रेम करेंगे और शैतान के धोखे और झूठ का पर्दाफाश करेंगे।